Namaskar students, welcome again with the chapter number 3, Delhi Sultanate. In previous lecture we have discussed about how the Tughlaq dynasty founded by the Ghayasuddin Tughlaq in 1320. Look the time period 1320 to 24 ruled by the Muhammad bin Tughlaq. Last topic was he succeeded by his son. अब देखिए इसके बाद कौन रूलर बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक, द सन ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक. फाइन. So he rules 1324 to 51. It means he ruled a long period of time in the Delhi Sultanate. Now first I am starting some qualities of the Muhammad bin Tughlaq. After that I will explain the policies of the Muhammad bin Tughlaq, and then we will compare the policies of the Muhammad bin Tughlaq and Alauddin Khilji. What was the similarities, their policies, and what was the differences from their policies. So first about the Muhammad bin Tughlaq, most learned and scholar of his time. जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो बहुत ही स्कॉलर यानी विद्वान, लर्न यानी कि उसे सारी चीज़ें अच्छे से आती थी. ऐसा नहीं था कि उसके फादर गयासुद्दीन तुगलक थे इसीलिए वो इसके कैपेबल था कि वो दिल्ली सल्तनत पर रूल करे. वो बहुत कैपेबल पर्सन था, वेल वर्ड्स इन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्सियन, यानी कि उसे सारी ही लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, चाहे वो संस्कृत था, चाहे अरेबिक थी, चाहे वो पर्सियन लैंग्वेज थी. इट मीन्स वो ही वॉज द लर्न, यानी कि उसे नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था, तो सारी लैंग्वेजेस के बारे में उसे अच्छे से पता था. नेक्स्ट इज़ वेल रीड इन रिलीजियस, फिलोसॉफी, साइंस एंड लिटरेचर, यानी कि उसने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, सारे रिलीजियस के बारे में. देखिए इंडिया इज़ द डाइवर्सिटी कंट्री फ्रॉम द स्टार्टिंग, हमारा पास्ट ही डाइवर्सिटी से स्टार्ट होता है, तो सारे रिलीजियस की नॉलेज थी. फिलोसॉफी होती है दर्शन की, अलग अलग जो रिलीजियस है उनकी फ़िलोसॉफी क्या है, किसका किस में फेथ है, साइंस के बारे में एंड लिटरेचर के बारे में, यानी कि उसको इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज थी. इफ़ वी से द if he was the ruler of the India at that time, so as a ruler he should know what are the diversity, what are the literatures, what are the religious of the people. So he know all about the people, public, for the as a ruler. And Ibn Battuta, he was the writer, he written in their book that the Muhammad bin Tughlaq was the most humble person. Most humble person मतलब कि their policies or their work always for the welfare of the people. So again I am repeating some qualities of the Muhammad bin Tughlaq. He was the most learned and scholar of this time. You can read these all things in your book. All things are mentioned in your book. Next was he was well versed in the Sanskrit, Arabic and Persian. Last is the he was well read in the religious, philosophy, literature and science, and he was the most humble person according to the Ibn Battuta. Now I am explaining the some policies of the Muhammad bin Tughlaq. Before starting the policies, please take out your book, page number 27. There is a column, the Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq policies. So first I will explain the policies of the Muhammad bin Tughlaq, what was the policies, why it was not success. After that we will compare the policies of the Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. So I am starting with the Muhammad bin Tughlaq policies. So student, we are talking about the Muhammad bin Tughlaq as a person, how he was scholars, learn and knowledge of the religious. He was the as a ruler, what step he has taken, we will study the policies of the Muhammad bin Tughlaq. So take out your page number 27. I will make the another video of comparing the Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq policies. So first I am explaining the policies
of the Muhammad bin Tughlaq. Page number 27, please open your book. First topic, there is mentioned defeat of the Mongol army. Mongol was that time the very powerful rulers and it was very difficult to defeat them. But Muhammad bin Tughlaq was able to defeat them. कि एक वही पर्सन था उस वक्त जो उन्हें हरा सकता था. Defeat of the Mongol army. Muhammad bin Tughlaq. We are talking about the policies of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq was able to defeat the Mongol army and raises a standing army to plan an attack on them, the Taxosena. Page number 27, it is your page number 27 from the chapter number 3, and according to the your book, I am explaining the policies of the Muhammad bin Tughlaq. Second is Delhi al-Kuna. The residents of the oldest city of the Delhi were made to live and soldiers occupied it. दिल्ली अल कुनहा जो है, जो रेजिडेंस था ओल्डेस्ट सिटी का, तो दिल्ली जो है उसे लीव कर दिया गया और वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उन्हें वहाँ पे ऑक्यूपाइड कर दिया गया. एक्चुअली क्या था, जो मंगोल अटैक होते थे बार बार दिल्ली पर, तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली उसको ट्रांसफ़र किया था कहाँ पर, दौलताबाद में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइजिंग टैक्सेस ऑन दोआब रीजन. सबसे पहले दोआब रीजन क्या था, द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर, उसकी इस लैंड को कहते थे दोआब रीजन. So Muhammad bin Tughlaq increased the land tax in the Ganga Yamuna Doab region in order to meet the expense of the army. उसने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए ताकि आर्मी के जो एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, उसे निकाला जा सके. बट एट दिस टाइम द रीजन वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फेमाइन. लेकिन उसी वक्त उस एरिया में फेमाइन आया, यानी क्रॉप्स फेलियर की वजह से एक तरह से क्या नेचुरल डिज़ास्टर हुआ. तो उसकी पॉलिसी जो थी वो सक्सेस नहीं हुई. एक्चुअली वैसे तो ये रीज़न बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत एग्रीकल्चर के पर्पस से बहुत अच्छा था. द पीजेंट ऑफ दिस रीजन्स रोज इन प्रोटेस्ट एंड द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. इस एरिया के जो पीजेंट्स थे वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक का, और सिचुएशन जो थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, यानी उसकी ये पॉलिसीज़ भी सक्सेस नहीं हुई. सेकेंड, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ टू द सोल्जर्स. अब वो किस तरह से पेमेंट देता सोल्जर्स को. मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर इन कैश. जो भी पेमेंट होता था सोल्जर्स को वो होता था कैश में. तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छे रिवेन्यू की ज़रूरत थी, टैक्सेस की ज़रूरत थी, ताकि वो अपने एक्सपेंस को पूरा कर सके और पेमेंट दे सके सोल्जर्स को. बट ये भी इसका जो कैश पेमेंट का जो भी प्रोसेस था वो भी सक्सेस नहीं हुआ. नेक्स्ट पॉलिसी वाज इशूइंग ऑफ टोकन करेंसी. अब उसने करेंसी में कई सारे चेंजेस किए. ये इसका बहुत ही बड़ा स्टेप था जो उस वक्त लिया गया. मोहम्मद बिन तुगलक issued bronze and copper token currency to overcome the financial crisis. यानी जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसको पूरा करने के लिए उसने नई टोकन करेंसी का यूज़ किया, जो किसकी बनी हुई थी, ब्रोंज की एंड कॉपर की. दिस क्राइसिस वाज ड्रेन ऑन द रॉयल ट्रेजरी एज अ रिजल्ट ऑफ हिज स्कीम. अब इस क्राइसिस की वजह से जो ट्रेजरी होती है, खजाना जो था वो ऑलरेडी क्या था, खाली हो चुका था. द कॉइन हैड द सेम वैल्यू एज द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, क्योंकि जो कॉइन्स उसने चलाए थे उनकी वैल्यू उतनी ही थी जितनी एक गोल्ड के कॉइन की थी और सिल्वर के कॉइन्स की थी. और उन कॉइन्स का उनको किस नाम से जाना जाता था, टका. द फोगरी अ न्यू कॉइन्स फोर्स टू सुल्तान टू विड्रॉ ऑल द टोकन करेंसी फ्रॉम द मार्केट. अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो ब्रोंज और कॉपर के टोकन कॉइन करेंसी थी वो सभी लोग बनाने लगे, उसे रिप्लेस कराने लगे. और बाद में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो सुल्तान ने इस करेंसी के जो स्कीम थी या फिर जो पॉलिसीज़ थी उसे विड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट स्टेप वाज शिफ्टिंग
ऑफ कैपिटल, उसने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की. Soon after his the accession to the throne, Tughlaq transferred the capital with his court and official as well as the entire populations from Delhi to Devgiri, renamed Daulatabad in Deccan. अब नेक्स्ट स्टेप था कि उसने बहुत ही जल्दी अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की. उसकी कैपिटल ट्रांसफ़र करने का जो आइडिया था वो अच्छा था, लेकिन उसने उसको सिर्फ क्या करना था, अपने ऑफिशियल्स और जो कोर्ट्स थे उससे ट्रांसफ़र करना था. लेकिन उसने सारी पॉपुलेशन को भी कहा कि वो दिल्ली से कहाँ आ जाए, दौलताबाद देवगिरी. सो ये जो स्टेप है उसका वो भी सक्सेस नहीं हुआ. The Sultan believed that the central location of Devgiri would enable him to exercise control throughout the country and protect the Sultanate from continuous Mongol attack. Extensive arrangements were made for the journey, but many people did not survive the long and difficult journey to Devgiri. The operation was total failure. ये ऑपरेशन भी क्या फेलियर हुआ. कई लोग रास्ते से वापस आ गए, कई लोग देवगिरी तक पहुंच ही नहीं पाए. जो जर्नी थी, रास्ता था, वो बहुत लंबा था और इतने सारे पीपल के साथ वहाँ पर शिफ्ट करना, उनके लिए सारे अरेंजमेंट करना, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था. सो आज हमने डिस्कस किया मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज़. अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी पॉलिसीज़ को किससे कंपेयर करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी. So read this paragraph carefully. मोहम्मद बिन तुगलक की जो ये पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग दिस टॉपिक.